हमें पिछले साल से ढूंढा कि ये इन तीनों को मैं लेकर आऊँ, दिखाऊँ। तो थैंक्स टू पंडित जी, उन्होंने मुझे हेल्प किया इसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए पूरा सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच पंडित जी। आप हमारे लिए सब कुछ जो हमें ज़रूरत होती है उसी वक्त सपोर्ट करते रहते हैं और सब कुछ हमें हेल्प करते हैं, एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच। दो शब्द मैं भी कहना चाहूँगी फॉर आवर मोस्ट beloved पंडित जी। पंडित जी, you are like the guiding light for our community, and I mean it when I say this. You offer wisdom and compassion to all who seek it. With your deep understanding and faith, you inspire us to grow spiritually and support one another. Your dedication and kindness leave a lasting impact on our lives, fostering a strong sense of unity and love. बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी। हमारे पंडित जी के बारे में क्या कहूँ उनके बारे में। चलो, डिक्शनरी में जितने भी अच्छे शब्द हैं, अगर मैं वो सारे बोल दूँ वो भी कम पड़ जाएंगे उनकी आदर सम्मान में। सच्ची, he is such a kind-hearted, sincere, helpful in every single way. So please, I would like to invite Jiawar Pandit ji on the stage. Pandit ji, please put your hands together for हमारे बहुत ही प्यारे, हम सबके दुलारे पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सनावतु सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामवितमस्तु मा विद्विषावहै। बोलो सरस्वती माता की। चलो यहाँ पे आए हुए आज के उपस्थित सभी मेहमान, सभी पार्टिसिपेंट्स और ईच एंड एवरीवन, सबको मेरा प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजमान परमात्मा को कोटि कोटि वंदन। So I welcome all the invited guests who was here today to see the India. So Vasant Panchami is the 5th day of the month of March when the spring starts. So we believe that the end of winter and summer will start, spring season. So at that time in India, when we get sunlight, sunshine, we feel happy and all the loneliness can go. So at that time, we normally pray to the Mata Saraswati. Goddess Saraswati is the goddess of knowledge, art and culture. So who are performing here, they're not doing dance, they're not doing act, they're not singing. They all are worshipping the goddess of knowledge, Saraswati. We believe music, art is a form of God. So here you are learning music, art, culture, they all are somehow worshipping the God. And that's the greatness of our Hinduism. Now behind the curtain, we are setting up one scene for the drama. Intentionally we keep this speech in middle of the play or middle of this whole program because we need more time to set up drama. Quite good. Why we are celebrating Vasant Panchami cultural program? We started in 2016. Within 9 years, we have improved so much. Are you happy with the sound and lights?
Are you happy with sounds and lights? Hello, in the corner? Okay. No one is sleeping here. That's good. So we show the unity. We can see the diversity of India, lots of languages, lots of arts, culture, costumes. So why are you here if you don't know the languages? Even I don't know all of these languages. But we look at the costume, their art, and their hard work. They all are working for more than 3 months to represent this whole showcase. So through the culture, Vedic Society, committee and management and trustees, they are so helpful. They allow us to use the hall, use all equipment and bring all the society together. Whichever state we are from, we don't mind. We ask them to come. Because we are Vedic culture and Vedic includes everyone. We are so inclusive. Vasudhaiva Kutumbakam. We, a whole universe is one family. And this is the one highlight of this message, Vasudhaiva Kutumbakam. So thank you very much everyone. Now we go to the next step of this speech or the introduction of the program. So behind the curtain, we are setting up one scene and this is the drama regarding knowledge. Who has to seek the knowledge and to whom we have to give the knowledge and what the real knowledge means. विद्या का सच्चा अधिकारी कौन है? किसको विद्या देनी चाहिए? दान की महिमा क्या है? दान किसको देना चाहिए? दान कैसा देना चाहिए? वो सब सभी बातें अच्छी तरह सुननी है आपको. और इसीलिए जो पीछे खड़े हैं ना, पिलर के पीछे, क्योंकि अभी ड्रामा में डायलॉग होने वाले हैं तो आप सबको शांति रखनी पड़ेगी वरना सुने नहीं देगा. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the dialogues is so meaningful and really is a real knowledge of Vedic scripture. तो उपनिषद में से ही ये ड्रामा लिया गया है और हमारे मंदिर के डिवोटी ही जो रेगुलर मंदिर में आते हैं उनके अंदर छुपे हुए कलाकार को ढूंढ कर उनसे ही ये प्ले करवा गया है. So thank you very much everyone for your kind support. Thanks to all the participants and most important thanks to team of Vasant Panchami, Hamanti Kumar, Ritu Sharma and Jyoti Bihari and their families who are allowing them to give us lots of time in the temple for this kind of work, noble work. धन्यवाद. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ड्रामा विद्या का सच्चा अधिकारी हेमंती जी. Music please. स्वामी विवेकानंद शिकागो की धर्म परिषद से वापस आ रहे हैं. स्वामी जी, आपका आगे का कार्य क्या है? मुझे भारत में एक परिवर्तन लाना, भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना और उसके लिए मुझे नचिकेता जैसे युवाओं की जरूरत है. अगर नचिकेता जैसे 100 युवा मिल जाए तो हम भारत को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित कर सकते हैं. लेकिन आपके पास तो अपने शिष्य भी हैं और भारत में बहुत सारे युवा भी हैं. आपको सिर्फ नचिकेता ही क्यों चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर के लिए कि नचिकेता ही क्यों, आइए देखते हैं कठोपनिषद में वर्णित आत्मविद्या के सच्चे अधिकारी की कथा.
वस्तु का दान करने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। तू कहना क्या चाहता है पुत्र? पिताश्री, विश्वजीत यज्ञ की सिद्धि के लिए अपने मोह का नाश होना जरूरी है और उसमें अपनी प्रिय वस्तुओं का दान देना चाहिए। और आपका प्रिय तो मैं हूँ। आप बताइए कि आप मुझे किसको दान में देंगे? नचिकेता, ये तू क्या कह रहा है पुत्र? हाँ पिताश्री, बताइए ना कि आप मुझे किसको दान में देंगे? नचिकेता, तू मुझे क्रोधित मत कर। बताइए पिताश्री, अपने मोह को त्यागिए और मुझे दान में दे दीजिए। त्यागिए पिताजी, अपने मोह को त्यागिए और मुझे दान में दे दीजिए पिताजी, दे दीजिए। नचिकेता, तू मेरे मोह से मुक्ति पाने के लिए इतना ही तत्पर है तो सुन, मृत्यु में कौन बना विधि। मैं तुझे मृत्यु के देव समाचार देता हूँ। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। जैसे आपकी आज्ञा पिताश्री। आपकी यज्ञ सिद्धि की प्राप्ति के लिए मैं यमद्वार जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे ऋषिवृत्तालय, ये तूने क्रोध में आके क्या कर दिया? अपने ही प्रिय पुत्र को यज्ञ को दान दे दिया। घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। जैसे आप प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम। बाहर कोई ब्राह्मण बालक आया है जो यमाचार्य से मिलना चाहता है। इस समय चलो मिल आते हैं। हे बालक। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम। तू कौन है और यहाँ यमपुरी में क्यों आया है? हे चित्रगुप्त, मैं ऋषि विद्यालय पुत्र नचिकेता हूँ और मैं यहाँ यमाचार्य से मिलने आया हूँ। कृपया करके आप यमाचार्य को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नचिकेता, मैं तुम्हारा पहले नाम देख चुकी। अरे तेरा नाम तो इस पोथी में है ही नहीं। तुम अभी वापस घर जाओ। नहीं मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पिता ऋषिवृत्तालय ने तो मुझे यमाचार्य को दान में दिया हुआ है। दान में दिया हुआ? समझ में नहीं आया। तुम इसका ध्यान रखो, अंदर ना आओ। जो आ गया जी। ऐसा कैसा पिता है जिसने अपने जीवित पुत्र को यमाचार्य को दान में दे दिया है? हे बालक,
तुम लौट जाओ। नहीं, मैं यमाचार्य से मिले बिना तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रणाम देवी। हे चित्रगुप्त, ये कैसा शोर था? बाहर एक ब्राह्मण बालक आया है जो यमराज से मिलना चाहता है। पर यम आचार्य जी तो 3 दिन तक यमपुरी में नहीं है। आप उस बालक को वापस घर जाने के लिए कह दीजिए। ठीक है देवी, यह संदेश उस तक पहुंचाता हूँ। प्रणाम चित्रगुप्त जी। प्रणाम। यमाचार्य 3 दिन बाद आने वाला है, यहाँ संदेश उस बालक तक पहुंचा दो। जो आ गया। हे बालक, यमाचार्य जी 3 दिन तक यमपुरी में नहीं है, तो तुम अपने घर वापस लौट जाओ। नहीं, मैं यमाचार्य से मिले बिना तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। भले ही ना मुझे 3 दिन तक उनकी प्रतीक्षा ही क्यों न करनी पड़े, मैं यहाँ इसी द्वार पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करूंगा। बिना अन्न और जल के यहीं प्रतीक्षा करोगे क्या? हाँ, मैं यही उनकी प्रतीक्षा करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। कृपया आप यमराज से बात कीजिए। ठीक है, यम आचार्य जी के आने पर मैं उनसे बात करती हूँ। सावधान, यमाचार्य जी पधार रहे हैं। हमारे द्वार पर एक ब्राह्मण बालक बिना खाए पिए 3 रात्रि से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है स्वामी। स्वयं विश्वनार अग्निदेव ही हमारे घर में ब्राह्मण और अतिथि के रूप में प्रवेश करते हैं, और जिस घर में ब्राह्मण और अतिथि बिना खाए पिए निवास करते हैं वहाँ सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं अतिथि देवो भव। आप शीघ्र ही उस बालक को बुलाकर उसका आदर सत्कार कीजिए। सत्य वचन। बार राम राजन, उस बालक को भीतर जो आ गया। हे बालक, यमाचार्य जी तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने
यह हमारी बहुत बड़ी भूल थी, परंतु इसके प्रायश्चित हेतु मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ पुत्र। नहीं यमाचार्य, मुझे इन वरदानों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। कृपया करके आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए। नहीं वत्स, वरदान तो तुम्हें लेने ही होंगे, यह हमारा आग्रह है। आप याद में शिरोमणि आचार्य। मांगो। हे यमाचार्य, मैं पहला वर आपको कल्याण के लिए मांग रहा हूँ। मैं दूसरा वर समाज कल्याण के लिए मांग रहा हूँ, और ये तीसरा वर मैं अपने परिवार के कल्याण के लिए मांग रहा हूँ। तो हे यमाचार्य, जब आपके द्वारा मुझे घर में जाकर तो मेरे पिता ऋषिवतालक का क्रोध शांत हो जाए और वो मेरा प्रेम पूर्वक स्वीकार करे, यही मेरा पहला वर है। नचिकेता पुत्र, हमारे आशीर्वाद से तुम्हारे पिता रुद्रालक तुम्हें प्रेम पूर्वक, क्रोध रहित और शोक रहित स्वीकार करेंगे। तथास्तु। अब दूसरा वरदान मांगो पुत्र। हे मृत्यु के देवता, मेरे पिता ऋषिवतालक ने स्वर्ण प्राप्ति के लिए विश्वजित नामक यज्ञ किया था, तो कृपया करके आप मुझे वो स्वर्ण प्रदान करने वाली अग्नि विद्या का ज्ञान दीजिए। सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायते न परमादितव्यम्। अर्थात पुत्र, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, व स्वाध्याय में कभी आलस्य न करना स्वर्ग प्राप्ति का सरलतम उपाय है। साधो साधो साधो। अब तीसरा वर मांगो। हे यमाचार्य, कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, और कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है। तो मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे वो आत्मा का रहस्य समझाने वाला अपनी विद्या का ज्ञान दीजिए। असंभव, असंभव। जिस आत्मज्ञान के रहस्य को जानने की तुम चेष्टा कर रहे हो पुत्र, वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ। इसके स्थान पर तुम संसार का सारा धन मांगो, ऐश्वर्य मांगो, रूपवती पत्नी, सुकौशल पुत्र पौत्र, महल, राजपाट इत्यादि सब मांग दो, परंतु इस विद्या का विचार त्याग दो पुत्र, इस विद्या का विचार त्याग दो। नहीं यमाचार्य, ये सब मेरे लिए तो नाशवंत है, और जो साथ में भी रहने वाला नहीं है। कृपया करके आप मुझे उसी आत्मविद्या का ही ज्ञान दीजिए। हे देवी, आपका क्या विचार है? आत्मविद्या का अधिकारी कौन होता है स्वामी? जो विवेकी हो, जो निर्भय हो, जिसको दान की महिमा पता हो, जो जिज्ञासु हो, जो अपने कल्याण का एवं समाज और आत्मा के कल्याण के बारे में विचार करता हो। ये सारे ही गुण नचिकेता में है स्वामी। यही आत्मविद्या का सच्चा अधिकारी है। उत्तम विचार नचिकेता, मैंने तुम्हें अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, परंतु तुम तनिक भी विचलित नहीं हो। मैं तुम्हारे इस निस्वार्थ लोकहित स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम ही इस आत्मविद्या के सच्चे अधिकारी हो। मैं तुम्हें ये आत्मविद्या का वरदान देता हूँ। तथास्तु। मुझ पर पढ़ाया So put your hands together for the Vedic drama group.
तो हमारे आज के जो कलाकार हैं, दो छोटी गैया हर्ष एंड गर्वी जो नटखट रहती है, ब्राह्मण देवता जिन्होंने दान की महिमा समझाई। जो काम उपयोगी हो वही मंदिर में दान करें, अपनी इच्छा के अनुसार दान मत करो। ब्राह्मण देव द्वारपाल चिराग अमित तिवारी कुणाल भाई एंड वही इज सेपरेट ड्रेस कौन है ये? भारत के लोग हो और लाउडली स्वामी विवेकानंद, अमित विमल भाई, भरत शर्मा और बीच में योगिंदर, यमराजा की पत्नी का नाम था तुमोरना, नम्रता बेन, सती पटेल, भरत पटेल, आरवी पटेल और गुस्सा वाले स्वामी उद्दालक अनावस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।